As K.K. Sethi, Superintending Engineer, ONGC, Bombay, and whistleblower. I have my recommendations on local bill, etc., judicial accountability bill, and various other anti-corruption related bills. My websites are K.K. Sethi, .blogspot.com, kksethi.wordpress.com. ये दोनों वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में से कहीं भी खुलेगी, यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए. Only I can remove corruption, everyone else tried and failed. Only whistleblower can remove the corruption, not President, PM or anybody else, or Anna Hazare also. ये एक पेज का लीगल नोटिस है जो मैंने वेबसाइट पे इंडियन सिटीजन्स को दिया है, तो तक बात उन तक पहुंचे. जरूरी नहीं कि उनके अगेंस्ट में है. तो ये लीगल नोटिस रिमाइंडर मैंने दिया है और 2 पेज का लीगल नोटिस पहले दिया था, तो ये मैं पढ़ के सुना देता हूं. फ्रॉम कुलदीप कुमार सेठी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ONGC, एंड whistleblower. मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे है, kksethi.blogspot.com और दूसरा kksethi.wordpress.com. ये 28 फरवरी का मेरा लीगल नोटिस है इंडियन सिटीजन्स को, जो कि ऑलरेडी PM, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बॉलीवुड स्टार सबको भेजा गया. तो मैं पढ़ के सुनाता हूं. सब्जेक्ट, ये एड्रेस है टू इंडियन सिटीजन, अथॉरिटीज एंड NRIs, विदेश में जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं. सब्जेक्ट, विसल ब्लोअर K.K. Sethi, ONGC, 24 hours reminder legal notice to Indian citizens, authorities, NRIs, in terms my continually updated web blog, www.kksethi.blogspot.com and www.kksethi.wordpress.com. ये मेरी वेबसाइट है. हेलो, एक्सक्यूज, इसको जरा फोकस करें. बात हो वहीं से दिखाइए सर. मेरी फोटो और मेरे वेबसाइट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे है और ये लीगल नोटिस भी मेरी वेबसाइट पे है जो मैंने इंडियन सिटीजन्स को दिया है. ये रिमाइंडर लीगल नोटिस में पढ़ के सुनाता हूं. विसल ब्लोअर K.K. Sethi, ONGC, 24 hour reminder legal notice to Indian citizens, authorities, NRIs, in terms, recording हो रही है, in terms my continually updated web blogs, website blog, www.kksethi.blogspot.com
और www.kksethi.wordpress.com. Myself, Pundeep Kumar Sethi, Superintending Engineer ONGC and whistleblower. This is my 24-hour reminder legal notice. After my legal notice dated 15 December 2011, in terms of my continually updated website, placed on my website जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट होती हैं और मेरे लीगल नोटिस है, मेरी लोकपाल बिल रिकमेंडेशंस हैं एंड माय कोर्ट मैटर्स विसल ब्लोअर वो मेरी वेबसाइट पे लगे हुए हैं जो मेरी रिकमेंडेशंस को जस्टिफाई करते हैं। और विसल ब्लोअर किसको बोलते हैं? विसल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट में फर्क होता है। आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए 10 रुपीज का फीस पे करके एनीबडी कैन बिकम आरटीआई एक्टिविस्ट एंड आरटीआई एक्टिविस्ट का जॉब नहीं जाता है, उसको घर से पुलिस फोर्स लेके वन बैटरी सबजुडे बाहर नहीं कर देते हैं। जबकि विसल ब्लोअर वो होता है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके एंटी करप्शन मूवमेंट करता है, उसका जॉब चला जाता है, उसकी फैमिली को पुलिस फोर्स लेके बाहर निकाल देते हैं, उसका फोटो वीडियो भी नहीं देते हैं। तो ऐसे इट इज पैट्रियोटिक एंटी करप्शन ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन authorities analyze to bring immediate duly compensated justice to whistleblowers and families. Respond immediately on my website blogs and on my Facebook, Twitter and Orkut accounts and propagate my website links having implications and benefits to the country of several thousand crores of rupees. मेरे वेबसाइट से ये लीगल नोटिस से कंट्री को कई हजार करोड़ का फायदा होगा और करोड़ों फैमिलीज जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, उनके ऑफिसर्स के, उनके लाइफ एंड डेथ का सवाल है वो सेव होगा। माई वेबसाइट कंटेन्स माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, recommendations on local bill etc. and my court matters whistleblower to substantiate that. Myself removed from service of ONGC and without salary since 28/3/2007 merely for expressing few views in sympathy of families of few terminated employees and self and family illegally forcibly evicted from official accommodation C1/23 ONGC Colony Bandra Reclamation, Bandra West, Mumbai. The constituency of Member of Parliament Madam Priya Dutt. Even when matter was sub judice and respondents of ONGC refusing to hand over illegal forcible eviction photos and videos of the family, and ONGC respondents must be dismissed, removed, arrested, and pertaining ministers under PM, Petroleum Minister Jaypal Reddy, Law Minister Salman Khurshid, Corporate Minister Veerappa Moily, who was earlier Law Minister, Home Minister P. Chidambaram, Finance Minister Pranab Mukherjee, and under CM Maharashtra, Prithviraj Chauhan, R.R. Patil, Home Minister, must resign along with their staff. Mr. Murli Devra also was careless about the whistleblower petitioner. Respondents misusing huge amount of public money, misleading, doing fraud and court, violating, subverting unconditional anticipatory stay order granted in favor of the whistleblower petitioner by Division Bench of High Court. Division Bench is 2 judges की bench. In court order dated 17/2006, in writ petition number 1636 of 2005, which attained finality has deemed to be Supreme Court order. अगर डिवीजन बेंच 2 जज के बेंच को
ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता, उसके बाद तो सिर्फ हेराफेरी होती है। स्टैंड पटिशन WP 2033 of 2007 was admitted by Division Bench of High Court, and rule show cause notice was issued to 16 respondents of ONGC, including CMD directors and Union of India. Union of India means PM and ministers and so on. Union of India failed to file affidavit. उनको हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया था, तो कोई एफिडेविट कुछ रिप्लाई देना चाहिए था। सीबीआई डायरेक्टर को भी इशू होता, CIG को, CBC को, और इनिशियली नोटिस वॉज इशू टू PM प्रेसिडेंट ऑल्सो। Subsequently, another jurisdiction, the High Court Division Bench, dismissed it because of misleading and fraud on court by the respondents and collusion of advocates की मिलीभगत। Counsels and whistleblower petitioner is now being expected to file a review petition in the High Court or SLT in Supreme Court. But petitioner is insisting that High Court order should be recalled. हेराफेरी या बदमाशी से या फ्रॉड तरीके से अगर कोर्ट को मिसलीड करके ऑर्डर होता है तो फिर नेक्स्ट कोर्ट में नहीं जाना होता है, रिव्यू नहीं होती, उसको वापस लेना पड़ता है। While petitioner insists recall of SC order since review without comprehensive view amounts to further fraud on court. तो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है, एक तो आपको सबको मालूम है कि उसमें पावर ज्यादा चलती है सीनियर जज की। जूनियर जज का प्रमोशन ट्रांसफर उसके हाथ में होता है, एंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को लोकपाल के अंडर में लाना चाहिए था, वो अन्ना हजारे जी ने नहीं देखा। और दूसरा, जो PSU पब्लिक सेक्टर चेकिंग का ऑफिसर है, OGC ऑफिसर, HPCL, BPCL, एयर इंडिया, ये भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन अंडर प्रेशर ऑफ प्राइवेटाइजेशन लॉबीज, अंडर प्रेशर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफिसर ट्रीट नहीं करती गवर्नमेंट। उनके जनरल मैनेजर को भी सीनियर ऑफिसर को हटाने के लिए CMD डायरेक्टर्स हटा सकते हैं, अंडर प्रेशर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबीज, प्राइवेटाइजेशन लॉबीज एंड इंटरनेशनल लॉबीज। जबकि एक जूनियर ऑफिसर होता है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको डिमांड है कि मैंने जो लोकपाल बिल रिकमेंडेशन अपनी वेतनों और कोर्ट जितने हैं इंडिया में, जजेस ऑर्डर देने से पहले सोच समझ के ऑर्डर दें। मतलब किसी भी जज को कोई राइट नहीं बनता है कि चमड़े के सिक्के चला दें। तो ये मेरा एक पेज का लीगल नोटिस है इंडियन सिटीजन को, डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले रिटन देना चाहिए। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट खुद उसको फॉलो नहीं करता है, बट बाकी कोर्ट को एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जजेस ये ना सोचे कि वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, तो उनको ऑर्डर पास, क्योंकि वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, जो रिटन एविडेंस है दैट शुड नॉट बी सुपरसीडेड बाय वर्बल आर्गुमेंट। और इससे पहले मैंने 2 पेज का लीगल नोटिस दिया था दिसंबर में, ये मेरा लास्ट रिमाइंडर था। तो उसको प्रेसिडेंट, PM, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स, स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बॉलीवुड स्टार, बहुत सारे जन को भेजा ही है। और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, गवर्नर महाराष्ट्र ऑल्सो। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स हाई कोर्ट में मैंने अकेले एंटीसिपेटेड स्टे ऑर्डर ले लिया था, सारा फ्रॉड है, बाकी करोड़ों रुपए पब्लिक के खर्च कर दिए उन्होंने मेरे अगेंस्ट में। और अभी बोलते हैं कि आप रिव्यू कर लो या SLT में चलेगा। नहीं, अगर
करप्शन से अगर हेरा फेरी टू इंडियन सिटीजन अथॉरिटीज एंड एनआरआई, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नोटिस टू ऑल सिटीजन अथॉरिटीज एंड एनआरआई, whistleblower KK Sethi OGC seeks immediate appointment and telephone talk permission to address Parliament and address public at prominent public places in Delhi and Mumbai, at least for one day in terms of my blog, kksethi.blogspot.com, kksethi.wordpress.com. It must be read with my other blog posts. 2. Dr. Pratibha Patil, President. Dr. Hamid Ansari, Vice President. Dr. Manmohan Singh. Madam Meera Kumar, Speaker. Mr. P. Chidambaram, Home Minister. Mr. Jayapal Reddy, Petroleum Minister. Mr. Salman Khurshid, Law Minister. Mr. Rahul Gandhi. Madam Sonia Gandhi, Opposition Leader. Mr. N.K. Advani and other political party leaders and kings, etc. As well as Mr. Prithviraj Chauhan, Chief Minister and Governor and Lokpal Maharashtra, and Mr. जो कि करप्शन है, काफी है। Public sector central government officers must be treated at par with central government officers and must be removed of this office का। And मिनिस्टर ये नहीं बोल सकता कि लीगल नोटिस जाता है सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह को, मिनिस्टर को नहीं जाता। मिनिस्टर को जब सेक्रेटरी को रिमूव करना होगा 1 मिनट में रिमूव कर देंगे, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आएगी तो सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर डाल देंगे, जो सही नहीं है। एंटायर जुडिशरी मस्ट बी अंडर लोकपाल इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। लोअर जुडिशरी को लोकपाल के अंडर में रखना और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को छोड़ देना बिल्कुल गलत है। उनको हटाने के लिए पार्लियामेंट के 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इसका मतलब आप उनको हटा नहीं सकते हैं। 100 में से 99 जज शरीफ है, ऑनेस्ट है, लेकिन 1% को गुमराह भी किया जा सकता है, जो कि बड़े बड़े एडवोकेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के आके उनको करते हैं। काइंड अटेंशन चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशरी लोकायुक्त महाराष्ट्र, विसल ब्लोअर KK Sethi and other whistleblowers expose large-scale corruption-related matters which benefit of several thousand crores of rupees to the country. To desist that, whistleblower responded to OGC is to take frivolous inquiries. उसमें मेन एलिगेशन मेरा क्या है that whistleblower expressed views in sympathy of families of few terminated employees and interacted with PM, CJ, etc. चार्ज क्या है? कुछ एम्प्लॉई टर्मिनेट हुए हैं, उनकी फैमिली की सिंपैथी में लिखा है उनकी चीफ जनरल इंटरेस्ट पे। इस चार्ज के ऊपर क्या किसी को रिमूव कर सकते हैं? क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, आप किसी को थप्पड़ मारो तो फांसी नहीं हो सकती है। सिविल मैटर में छोटे छोटी बात पे रिमूवल कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ करप्शन। तो इसका इलाज होना चाहिए, ये सही नहीं है। और रिमूवल का मतलब है मर्डर। आज की डेट में किसी का आप जॉब ले लेते हो, रिमूव कर देते हो, डिसमिस करते हो, मर्डर, तो चार्ज उसके इक्वल होना चाहिए ना। थप्पड़ मारने में फांसी होती है क्या? और किसी ने विसल ब्लोअर ने अपने कलीग की फैमिली की सिंपैथी में लिख दिया तो उसमें उसका रिमूवल हो जाएगा क्या? जजेस को भी सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातें सुप्रीम कोर्ट में ध्यान नहीं रखता इन चीजों का, और हाई कोर्ट रखता है। और मीडिया, इंडियन मीडिया है, टीवी चैनल है, प्रिंट मीडिया है, जब विसल ब्लोअर का केस आता है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। बड़े बड़े